The format of the session will be I'll first talk about my journey and मैं bilingual रखने की कोशिश करूँगी इस सेशन को so that सबको समझ आ जाए। तो मैं पहले अपना अपना इंट्रोडक्शन दूँगी, अपने बारे में शॉर्ट में बताऊँगी कि मेरी क्या जर्नी रही है यूपीएससी में। जो मेरी जर्नी रही है उसमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करी मैंने, उसको कैसे हैंडल किया एंड हाउ आई एंडेड अप getting selected, how I ended up cracking so many government exams in a span of 2 years. I'll tell everything about it. And I hope that this session is fruitful for all of you. That's my intent behind this session. So if I am audible, I think I'm audible enough. That's why nobody is commenting about it. Then I'll start the session now. So, hello, namaskar. I am Reet Sundaram. I am an IP and TAFs, that is Post and Telecommunication Accounts and Finance Services probationer right now. I got selected in UPSC 2021 and I got a rank of AIR 21 in reserve list. Before UPSC, I have done BTech in Electronics and Telecommunication from Kalinga University. I have worked in Tata Consultancy TCS Limited in Hyderabad. And then after that, I left that and I started preparing. I did a lot of freelancing. I worked in different coaching institutes as well. And then I got selected in UPPCS 2019, UPPCS 2020, and 66 BPSC as well. I also got selected in IB-ACIO. But then I was appearing in UPSC, so I did not join these services. I eventually ended up joining UPPCS 2020, which was a post of District Commandant of PRDs as well as Youth Welfare Officer in UP. And then I got selected in UPSC and I came here. So that was my brief introduction. In UPSC, I had my optional as anthropology in the year in which I got selected. Before anthropology, I had philosophy, and because I used to score very low in philosophy, that's what the reason for my long journey in UPSC was. Otherwise, my general studies was very good, and I wrote 5 main in UPSC and I cleared 5 prelims. I gave 2 interviews. So I can fairly say that my prelims portion was very good because I have appeared in 12 prelims of government exams and I got selected in 11 of them. So I can fairly say from a lot of experience that my prelims was very good. My main was not that good initially, but I worked on it over time. मैंने यूपीएससी में 6 साल पढ़ाई करी है और जो 5 साल मैंने मेहनत करी वो मेन पर ही थी, जो मेरी राइटिंग प्रैक्टिस थी उसके ऊपर ही थी। और उसके बाद इंटरव्यू में जाने के बाद इंटरव्यू वाज स्टिल बेटर देन मेन, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है। सो कमिंग ऑन टू, पहले हम बिल्कुल सिस्टमैटिकली चलते हैं, पहले प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं। सो प्रीलिम्स इज बेसिकली, जो प्रीलिम्स का फॉर्मेट है वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग के साथ, जिस तरीके से मेरा दिमाग फंक्शन करता है उससे बहुत टेलर्ड है। सो इट्स ईजियर फॉर मी टू क्लियर प्रीलिम्स, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज रहते हैं एंड एमसीक्यूज जहाँ आते हैं तो वहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं एंड 4 ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। सो इवन इफ यू हैव नॉट, even if you don't remember something very well, but if you have understood the concept of it, आप वहां पर अपना लॉजिक लगा के आंसर कर सकते हो। सो दैट वाज द रीजन व्हाई आई वाज गुड इन प्रीलिम्स, बिकॉज वहां देखकर मैं वहां पर लॉजिक लगा के आंसर कर लेती थी एंड and that was the very reason why in CSAT also, now I'll come to CSAT also, but overall CSAT में जो reasoning, maths and comprehension का portion होता है उसमें I was quite good. आई एम सेइंग जो सीसैट पहले होता था, अभी लास्ट ईयर का जो सीसैट, इस साल का जो सीसैट है, इट हैज बीन वेरी टफ। आई हैव नॉट सीन द पेपर बट आई हैव हर्ड दैट इट्स रियली टफ। सो आई एम नॉट सेइंग दैट आई वाज एक्सेप्शनली गुड एट इट, बट जब 2014 से मैं अटेम्प्ट देते आ रही हूँ एंड 2014 से लेके 2021 तक आई नेवर फेस्ड अ प्रॉब्लम इन सीसैट। अब इसके पीछे मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी हो सकता है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इज नॉट इनफ, बट जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो उस टाइम पे प्लेसमेंट्स के लिए भी एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ना होता था, तो आई एंजॉयड इट अलॉट, सो आई वर्कड ऑन इट और उसकी वजह से मेरा सीसैट ठीक हो गया था।
and that also helped me in GS. Having said that, just being good in logical reasoning and aptitude is of course not enough for prelims. You have to have a very good base for your knowledge, good base of the command over the subjects. तो एक एक करके सब्जेक्ट्स पे आते हैं. प्रीलिम्स के लिए हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है प्रीलिम्स में, वो मेरे ख्याल से है पॉलिटी. और होना भी चाहिए, बिकॉज दैट्स व्हाट योर वर्क इज गोइंग टू बी व्हेन यू एंटर द सर्विसेज. चाहे आप आईएएस में हो, चाहे आईपीएस में हो, चाहे अकाउंट सर्विसेज में हो, चाहे किसी भी सर्विस में क्यों ना हो, यू आर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड यू आर helping the government in implementing their policies. So you need to understand how government works. पॉलिटी में आप बस यही समझते हो. तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है जो कि बाइबल माना जाता है, एंड ऑफ कोर्स आई वाज आल्सो वन ऑफ दोज पीपल जो लक्ष्मीकांत पे डिपेंड करता था, एंड आई रेड लक्ष्मीकांत अगेन एंड अगेन एंड अगेन. एक पॉइंट के बाद जब आप लगातार अटेम्प्ट्स देते हो तो फिर ऐसा होता है कि आपने लक्ष्मीकांत बहुत बार पढ़ रखी है, आपको ये नहीं समझ आता कि जो चीजें आप मिस कर रहे हो वो आप बार बार वही चीजें मिस कर रहे होते हो. अब फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, उसमें जो चीजें आपको नहीं याद रहती हैं वो वही आप बार बार मिस करते हो. तो इसीलिए ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने बहुत बार अटेम्प्ट दिए हैं, जिन्होंने 3 बार से ज्यादा अटेम्प्ट दे दिए और वो बार बार लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, उनके लिए आई विल सजेस्ट गो फॉर ईदर अ टेस्ट सीरीज, जो कि पॉलिटी वाले बेसिस के टेस्ट सीरीज होते हैं, जिसमें विजन आईएएस के टेस्ट अच्छे होते हैं, इनसाइट्स के अच्छे होते हैं, आईएएस बाबा के अच्छे होते हैं. तो इन सारे टेस्ट में जो पॉलिटी वाला पोर्शन है उनको उठाइए और उनको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, rather than like mugging up Lakshmikant again and again. That would be more beneficial to take up the questions. अब इसके बाद अगर वो नहीं ठीक लग रहा है तो फिर विनय सर की एक बुक है, उसमें भी उन्होंने क्वेश्चन फॉर्मेट में ही, एंड दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन लक्ष्मीकांत. तो मैंने अपने लास्ट के अटेम्प्ट में यही किया था, मैंने क्वेश्चंस ही लगाए थे बेसिकली. बट प्लीज इंश्योर दैट क्वेश्चंस लगाने से पहले यू हैव अ साउंड बैकिंग ऑफ व्हाट इज देयर इन द बुक. आप डायरेक्टली अगर क्वेश्चन लगाने लग जाओगे तो आपका कुछ ना कुछ जरूर रहेगा एंड आपका स्ट्रॉन्ग ग्रास्प नहीं रहेगा. तो डू रीड द बुक्स, डू रीड द टेक्स्ट बुक्स and then go for the question papers or the such kind of books in which the subject is given in a question answer format. But I definitely recommend विनय सर की book which is very good. तो अब ये हो गई पॉलिटी की बात. पॉलिटी एक बहुत सब्सटैंशियल पोर्शन कवर करता है, ना सिर्फ प्रीलिम्स का, मेन का भी. सो हैव अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर दैट. उसमें सिर्फ आप निटी ग्रिटी पे मत जाना. सिर्फ ये याद रखना जरूरी नहीं है कि कौन सा आर्टिकल नंबर क्या कहता है या कौन सा लॉ का नाम याद रखना, या जो फैक्चुअल चीजें हैं वो ठीक है, एक हद तक इम्पॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके पीछे के इंटेंट को समझना और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना कि जो हमारा हेबियस कॉर्पस है वो क्या करना चाहता है, या फिर जो हमारे लोकसभा के रेजोल्यूशंस हैं अलग अलग फॉर्म्स क्यों हैं, स्पीकर का रोल ऐसा क्यों है, प्रेसिडेंट को ही क्यों एग्जीक्यूटिव का हेड बनाया गया है. सो अंडरस्टैंड द इंटेंट बिहाइंड इट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. नहीं, विनय सर जो आई थिंक इनसाइट्स के हैं वो हेड, विनय जीबी, ही इज द ऑथर ऑफ ऑल दीज बुक्स, सो गो फॉर दैट. अब ये आते हैं, ये हो गई पॉलिटी वाली बात. अब नेक्स्ट आते हैं, देर इज वन मोर सब्जेक्ट विच आई थिंक हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड दैट हैपेंड आफ्टर 2013. सो 2013 में क्या हुआ था, 2013 में यूपीएससी ने पैटर्न चेंज करा. 2013 से पहले यूपीएससी में 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, मार्किंग पैटर्न डिफरेंट था, जो मेन होता था वो बहुत ही लंबा चलता था. प्रीलिम्स में प्रीलिम्स का भी फॉर्मेट एमसीक्यूज ही होते थे बट फॉर्मेट अलग था मार्किंग पैटर्न का. 2013 में इट केम अप विद अ मेजर चेंज इन विच जो सीसैट है वो एक सेपरेट पेपर हो गया, एंड फॉरेस्ट सर्विसेज दे ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग द सेम प्रीलिम्स एज सिविल सर्विसेज. इसकी वजह से क्या हुआ है कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं. सो दैट इज व्हाई फॉर मी द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन वुड बी इन्वायरमेंट. हैव अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर दैट. अब इन्वायरमेंट जो है ना वो भी बहुत फैक्चुअल हो जाता है. उसमें भी अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि कौन सा एनिमल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन सा इंडेंजर्ड है, इट्स वेरी मच फैक्चुअल. बट फर्स्ट golden rule is always understand the concept. Always understand the concept first कि क्योटो प्रोटोकॉल क्यों आया था, उसमें दिक्कतें क्या हुई.
तो इस तरीके की चीज़ें आप अंडरस्टैंड करो। उसमें अब एनवायरनमेंट सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं, अब एनवायरनमेंट एक जियोपॉलिटिक्स के अंदर भी है, तो वो भी आप समझो साथ-साथ। इट विल नॉट ओनली मेक इट ईज़ियर फॉर यू, इट विल नॉट ओनली मेक इट यूज़फुल फॉर यू, इट विल मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू एज़ वेल। आप चीज़ों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करो। तो एनवायरनमेंट पे आते हैं अगेन। अब जैसे मैं ऐसा करती थी कि मैंने शुरुआत में आई थिंक इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ आई रेड शंकर आईएएस एनवायरनमेंट, एंड बिकॉज़ पहली बार ही मैंने वो पढ़ लिया था, एंड इट्स अ वेरी बल्की बुक। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ा होगा। मैं करंट अफेयर्स पे आऊँगी अभी, आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप। तो जो शंकर आईएएस की बुक है, बल्कि है वो, बट क्योंकि मैंने पढ़ लिया था इसलिए मैंने हर साल वही पढ़ा, ताकि मुझे चीज़ों को रिटेन करने में आसानी हो। तो शंकर आईएएस की बुक अच्छी है, बट अच्छी रेकमेंड मैं बुक उन्हीं लोगों को करूँगी हु आर वेरी गुड इन फिल्टरिंग आउट कंटेंट, क्योंकि जो इट्स अ बल्कि बुक एंड नॉट एवरीथिंग इज एसेंशियल इन इट। तो अगर आप ए टू जेड पढ़ने वाले लोग हो और चीज़ों को बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स को पढ़ने वाले लोग हो, देन आई वुड नॉट रेकमेंड गो फॉर शंकर आईएएस, गो फॉर समथिंग विच इज मच मोर कंसाइज एंड विच इज मच मोर, जो आपको ज्यादा बेनिफिट दे, टाइम कम लगाए बट बेनिफिट ज्यादा दे। इसके लिए मेरे पास फिर सजेशन में टेस्ट सीरीज के पेपर्स ही आएंगे, दैट्स व्हाट आई नो। बट अगर आपके पास और भी पीपल हु कैन टेल यू दिस थिंग, मेरे हिसाब से तो ऑल्टरनेटिव में टेस्ट सीरीज इज बेस्ट, लेकिन गुड क्वालिटी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में फिर आप, मैं विजन के टेस्ट सीरीज या इनसाइट्स के, इन सबको रेकमेंड करूंगी जिनकी क्वालिटी पे आप लोगों को डाउट नहीं है, एंड विच हैव इवॉल्व देमसेल्व्स ओवर टाइम। देखिए, यूपीएससी को कोई बीट नहीं कर सकता, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ना एप कर सकता है कंप्लीटली, ना बीट कर सकता है। वो उनकी कोई एक स्ट्रैटेजी को एप करेगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी वो स्ट्रैटेजी चेंज कर देगा। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि कोई भी टेस्ट सीरीज यूपीएससी के बराबरी का है, बट ये होना चाहिए कि उन्होंने जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं उसके बेसिस पे पेपर्स बनाए हैं और डायनामिक रखा है। ये चीजें अगर फॉलो करता है कोई, तो आई थिंक दैट्स अ गुड टेस्ट सीरीज। So according to me, Vision IS would be a good preference, and Insights is also good. Go for a combination of these two, that would be good enough. So environment में I used to do Shankar IS and then the test series. अब आते हैं next history and culture पे। I am simultaneously reading the chat as well if you are coming up with something important. मैं definitely सारी चीज़ों को address करने की कोशिश करूँगी। CSAT के बारे में मैं बताती हूँ। मेंस पे मैं प्रीलिम्स के बाद आऊँगी। हिंदी ऑप्शनल वगैरह ये सब मेन पे मैं हिंदी मैं प्रीलिम्स के बाद आऊँगी। अभी मैं प्रीलिम्स से डील कर रही हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी ये होती थी कि मैं प्रीलिम्स के लिए 2 महीने अलग से देती थी। इसके अलावा जो बाकी का टाइम होता था, मैं प्रीलिम्स और मेन इंटीग्रेट करके चलती थी। बट प्रीलिम्स से 2 महीने पहले आई यूज्ड टू गिव डेडिकेटेड टाइम टू प्रीलिम्स। तो अब आते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर पे। ओके, सो हिस्ट्री का जो बेसिस होता था वो मेरा एनसीईआरटीज था। एनसीईआरटीज को मैंने पढ़ रखा अच्छे से, एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की जो कल्चर की बुक है, आर्ट एंड कल्चर की, वो मेरा बेस होता था। इन दोनों को पढ़ने के बाद फिर मैं टेस्ट लगाती थी। टेस्ट का अगेन अल्टरनेटिव एक है विनय जीबी की जो बुक है वो, बट टेस्ट आपको फिर भी लगाने होंगे, क्योंकि टेस्ट का ये एडवांटेज होता है कि वो डायनामिक होता है, उसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो ये मैं ये सारी चीजें ही करा करती थी। बात के अटेम्प्ट्स में मुझे ये फायदा हो गया था कि क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक्स बहुत बार पढ़ रखे थे, तो मुझे टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बात के अटेम्प्ट्स में मैं सिर्फ टेस्ट ही लगाती थी या विनय जीवी सर की बुक ही लगाती थी। तो ये हो गया, हिस्ट्री एंड कल्चर की बात कर ली मैंने। हिस्ट्री में क्वेश्चंस बहुत टफ करने लग गए हैं अब, और वो बड़ा ऐसा होता है कि आपने सब कुछ भी पढ़ रखा हो तो भी पता नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि क्वेश्चन उसी पोर्शन से आएगा कि नहीं आएगा, बट यू हैव टू डू योर बेस्ट। आप अपना पढ़ के जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ। ये बहुत बार होता है कि जो ऑप्शंस हैं उसमें से शायद 1-2 आपको पता होता है, 1-2 नहीं पता होता है, बट जस्ट बिकॉज आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है उससे रिलेटेड, आप आंसर कर पाते हो। So just do your best and then go for the exam. So that is history. Okay. एक क्वेश्चन इस अभी बीच में पूछा गया है कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू एनालाइज टेस्ट एज दे आर टाइम टेकिंग। तो टेस्ट को एनालाइज करने का अगर टाइम आपको सेव करना है, सो द बेस्ट वे इज ओनली गो फॉर दोज क्वेश्चंस इन विच यू आर नॉट कॉन्फिडेंट।
don't fall into the trap of answering those questions which you already know and just like being happy about it. उससे कोई फायदा नहीं, आपको किसी को वैलिडेशन देने की जरूरत नहीं है. You have to improve yourself. तो आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को टेकअप करिए जो जो आपके हिसाब से आपको नहीं आता है, इन विच यू आर डाउटफुल. आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करिए और उन्हीं के एनालिसिस देखिए. कुछ लोगों ने ऐसा भी किया, जैसे मैंने भी कुछ टेस्ट में ऐसा किया हुआ है कि मुझे ऐसा पता था कि फॉर एग्जांपल पॉलिटी है, पॉलिटी में मुझे ऐसा लगता था कि मेरा स्ट्रांग है, तो मैं ऐसे करती थी कि मैं उसके टेस्ट नहीं लगाती थी. मुझे पता ही था कि इसमें आंसर में बहुत सारे कर लूंगी तो टाइम वेस्ट होगा. मैं डायरेक्टली उसकी एनालिसिस देखती थी और एनालिसिस में भी मैं एक सुपरफिशियल रीडिंग करती थी कि अच्छा ये दीज आर द थिंग्स व्हिच आई डोंट रिमेंबर, तो मैं उसको रिवाइज कर लेती थी. सो this is a strategy that you can use. You can pick and choose the kind of questions you want to answer or the kind of analysis that the type of the topics that you want to read about. तो ये आपका you have to be very analytical in your own preparation. आपको ये बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि आपको क्या आता है कि नहीं आता है, या आपको चीजें याद है कि नहीं है. Keep analyzing yourself first and then on the basis of that read the test analysis. That will help you save a lot of your time. Um, then we'll come on to, okay, so a lot of people are asking about CSAT. They're really scared about CSAT. So let me first address CSAT. Although I don't know if how much of a help I can be. Um, I'll be honest with you. I have scored more than 180 in CSAT twice, and that is something which I am very happy and grateful also about. But at the same time, I want to say that CSAT was something which came easier to me, क्योंकि मैंने उसके इंजीनियरिंग टाइम में भी काफी प्रैक्टिस कर रखी थी, तो मैं उसको कर लेती थी. अच्छा, मेरी उसमें क्या स्ट्रैटेजी रहती थी मैं ये बताती हूँ. मैं पहले मैथ एड्रेस किया करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैथ के जो क्वेश्चंस हैं उसको अगर मैं आंसर कर लूँ तो वो श्योर शॉट है. उसमें तो मुझे मार्क्स मिले. अब सीसैट में टॉप नहीं करना है आपको, सीसैट में आपको पासिंग मार्क्स बस कर लेने हैं, जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उससे ज्यादा आपको बस स्कोर कर लेना है. तो इसलिए मैं पहले वो इंश्योर कर लेती थी. पहले मैथ करती थी, फिर रीजनिंग करती थी, फिर मैं कॉम्प्रिहेंशन पे आती थी. कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स मुझे डाइसी लगते थे. अब इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि सीसैट में कभी किसी भी क्वेश्चन को अपने ईगो पे मत लेना. मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, यू हैव गिवन इट 2 minutes to 5 minutes, मैक्सिमम लाइक 5 minutes, मूव ऑन. नहीं हो रहा है फिर ये मत सोचना कि इसको तो 5 मिनट दे दिए हैं, अब तो इसको करना ही करना है, वो भी मार्क्स गए, आगे का भी गया. नहीं, दैट्स अ ट्रैप. गो अहेड एंड लाइक मूव अहेड, लेट गो ऑफ दैट क्वेश्चन. आपको सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करना है कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स पास करने हैं सीसैट के. पेयर क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट क्वेश्चंस, इसमें आई विल हैव टू लाइक अपोलोजाइज अ लिटिल बिट, बिकॉज मैंने जो है 2021 तक ही पेपर दिया है, तब तक इतने ज्यादा स्टेटमेंट क्वेश्चंस नहीं आते थे. 2022 के पेपर में 2020 अभी 3 का हुआ है, तो इन दोनों में ज्यादा आए हैं, आई नो. Statement questions में all I can say is practice more and more of such questions. And if you're feeling underconfident in CSAT, don't ignore it. इस बार बहुत सारे दोस्तों को जानती हूँ मैं, काफी सारे जो सीसैट जो काफी अच्छे हुआ करते थे, प्रीलिम्स हर बार उनकी सिलेक्शन होती थी, बट इस बार जीएस तो उनका हो रहा था बट सीसैट की वजह से रुक गया है. सो डोंट इग्नोर सीसैट एनी मोर. अगर आपको कोचिंग की, अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, गो फॉर कोचिंग. जो मैथ और रीजनिंग है उसके लिए कैट की जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर गुड एट इट. टेक देयर हेल्प. यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैथ के, रीजनिंग के ट्रिक्स बताते हैं. यू कैन गो फॉर दैट एज वेल. आप उनको देखिए, इग्नोर मत करिए. गिव some time to CSAT as well and give some time to GS as well. उसको if not equal but give it some legitimate time. Even this is something that I want to tell engineers as well, क्योंकि engineers ऐसा सोचते हैं कि उनका तो ठीक है, उनको CSAT को टाइम देने की जरूरत नहीं है, but given the fact that अब CSAT भी काफी टफ होता जा रहा है, so give time to CSAT as well. That is the only antidote to it. Give time, practice, refer to good source material. Again, going back like 5-6 years पहले IMS टाइम इन सब का मटेरियल काफी अच्छा हुआ करता था सीसैट को लेकर.
तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो, बट ऑल्सो जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है अभी 22-23 में, आप उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या मटेरियल रेफर किया था या व्हाट वाज देयर स्ट्रैटेजी, गो फॉर दैट। जिसमें भी आप श्योर नहीं है सीसैट में, आप उनको अटेम्प्ट मत करिए वैसे क्वेश्चंस को। एंड प्लीज मेक श्योर, दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू से, कि सीसैट में कभी भी किसी क्वेश्चन पे अटकना नहीं है। अगर आप अटक गए हो, एक थोड़ा टाइम ज्यादा लगा दिया हो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट विल ओनली किल योर टाइम एंड remove your chances of getting selected. Okay, I'll come to answer writing practices later. I'll come to answer writing practices later. First, let me address the prelims portion. So that was CSAT. History and culture मैंने बता दिया है. Geography में don't delve a lot of time into geography. Geography में मतलब जो बायोजियोग्राफी है या फिर जो टेक्निकल पोर्शन है ज्योग्राफी का, जियोमॉर्फोलॉजी है, अब इनसे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, तो इसमें ज्यादा टाइम मत दीजिए। वो इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, बट उसमें ज्यादा टाइम मत दीजिए। गो फॉर रिसोर्सेस, कि ज्योग्राफी के रिसोर्सेज जो हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं पूरे वर्ल्ड में, कहाँ कहाँ, क्योंकि ये अभी के जियोपॉलिटिक्स को डिटर्मिन करता है। यूरेनियम कहाँ कहाँ पर है, लिथियम कहाँ पर है। सो प्लेसमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज, जो रिसोर्स ज्योग्राफी है उसको मास्टर करिए। एंड देन मैपिंग, मैपिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैपिंग में आपको करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड करना है, कि जो वॉर सिनारियोज है मिडिल ईस्ट का, मिडिल ईस्ट के एक दो क्वेश्चंस डेफिनेटली रहते हैं मैपिंग के हर साल, तो मिडिल ईस्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर यूक्रेन पे वॉर हुआ है तो यूक्रेन के अराउंड सारे लोकेशंस देख लिया। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैपिंग को भी मास्टर करने की जरूरत है, नॉट जस्ट इंटरनेशनल, ऑफकोर्स इंडिया एज वेल। इंडिया इज मोर इम्पॉर्टेंट, इंडिया के सारे पोर्शन। जो टूरिज्म एस्पेक्ट है उस पर भी ध्यान रखिएगा कि कौन से एरियाज ऑफ इंडिया आर फेमस फॉर व्हाट, एंड उसको लिंक करके हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटिकल जो रेल्म है उसको, उन सबको मैपिंग में इंक्लूड करके आप मैपिंग को करा करिए ज्योग्राफी के। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर द कंग्रेचुलेशन। सोशल मीडिया पे डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन सोशल मीडिया। मेरा इंस्टाग्राम भी है रीत सुंदरम के नाम से, एंड यूट्यूब चैनल भी है मेरा रीत सुंदरम के नाम से। इफ यू सर्च रीत सुंदरम यू विल सी इंस्टाग्राम, रीत सुंदरम _IPTAFS 2022 is my username in Instagram, and RS Lives 1 is my channel on YouTube. So you can go there and ask me any question if you need. सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू, अब हिस्ट्री कल्चर की बात कर ली, ज्योग्राफी की बात कर ली, अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स इज अ जाइगैंटिक पोर्शन। करंट अफेयर्स में समझ नहीं आता रहता है कि क्या करें क्या छोड़े, व्हाट इज इम्पोर्टेंट व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो शायद बहुत ही ओल्ड स्कूल भी है शायद, बट आई बिलीव दैट यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर। इफ नॉट रीड इट इन डिटेल में बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप स्किम जरूर करिए हर दिन न्यूज़पेपर को, हिंदी हो इंग्लिश हो, कोई भी एक न्यूज़पेपर जो आपको लगता है कन्वीनियंट है आपके लिए। डू गो थ्रू द न्यूज़पेपर वंस, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, इवन हाफ एन आवर इज एसेंशियल। कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर में जो एक फोटो आई ऐसी रहती है, एक पिक्चर ऐसी आई रहती है जिसमें से क्वेश्चन बन जाता है प्रीलिम्स का, मेरे साथ हुआ है ऐसा। तो डू स्किम थ्रू न्यूज़पेपर वंस, उसको बस आधे घंटे टाइम देने की जरूरत है, नॉट मोर देन दैट। उससे ये पता चलता रहता है कि न्यूज में क्या चल रहा है। आपको बी वेरी लॉजिकल एंड स्मार्ट इन दिस। अगर किसी चीज को ज्यादा कवरेज दी जा रही है न्यूज़पेपर में, अब जैसे कल या परसों मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि जनरेटिव एआई पे एक आर्टिकल आया हुआ था। सो रीड अबाउट जनरेटिव एआई, दैट इज द न्यू ट्रेंड। वेरी मच पॉसिबल दैट यूपीएससी कैन आस्क इन क्वेश्चन ऑन दिस, इफ नॉट प्रीलिम्स डेफिनेटली इन मेन. So be on the lookout for something that's disruptive, something that is big. Chandrayaan 3. So all these things do go through newspaper just to understand what is going on in the world, and give no more than half an hour on that. न्यूज़पेपर की बात खत्म हुई, तो अब आपको कुछ एक सम करंट अफेयर्स मैगजीन की भी जरूरत होती है, क्योंकि उसमें कंसोलिडेटेड वे में सारा इंफॉर्मेशन होता है। अब इसमें जो है आप कई तरीके से कर सकते हो। मैंने बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनकी सिलेक्शन हो रखी है, जिन्होंने हर महीने एक करंट अफेयर मैगजीन किया है, जैसे फॉर एग्जांपल विजन आईएएस का या फिर राउज आईएएस का जो कॉम्पास होता है, उनको उन्होंने, या फोकस होता है राउज आईएएस का,
एंग्जाइटी के बारे में भी बात करूंगी मैं। मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी अपनी और यूट्यूब चैनल है वो आपको शेयर कर दूंगी एट द एंड ऑफ द सेशन। तो मैं बता रही थी कि जो करंट अफेयर्स के मैगजीन्स हैं, मंथली मैगजीन्स भी कर सकते हो आप हर महीने, या फिर मैं ऐसा करती थी कि मैं पीटी 365 करा करती थी और मेन 365 करा करती थी विजन के। तो इतना जो है वो सफिशिएंट होता है। अगर आप न्यूज़पेपर देख ले रहे हो हर दिन और पीटी 365 मेन 365 कर ले रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ। उतना ही करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको याद भी रखना है, आपको रिटेन भी करना है। सो गो थ्रू दीज, उसको एक डेडिकेटेड टाइम देना इसके लिए कि मतलब 10 डेज 15 डेज मैंने पीटी 365 के लिए रख रखा है, या 1 मंथ 20-25 डेज मैंने मेन 365 के लिए रख रखा है। उसको एक डेडिकेटेड टाइम देना, तो सॉर्टेड रहती है प्रिपरेशन फिर। और जब आप मेन 365 करोगे, बहुत ही अच्छा एक विजन आईएएस ने वो भी शुरू करा था, पीटी 365 से रिलेटेड दे हैड स्टार्टेड पोस्टिंग क्विजेज एज वेल। डू चेक दोज क्विजेज, क्योंकि उससे आपको बहुत आइडिया लग जाता है कि आपको क्या चीजें याद हैं क्या नहीं याद है। सो पीटी 365 मेन 365 करना और उनके क्विजेस को भी अटेम्प्ट करना, इससे काफी हद तक करंट अफेयर्स कवर हो जाता है। ओके, वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ विच रियली हेल्प मी इन माई लास्ट अटेम्प्ट इज हैव अ स्टडी पार्टनर। I am telling you, that is one thing that entirely changed the way I prepared in my last attempt. अब मैंने जो स्टडी पार्टनर, ही वाज माय फ्रेंड, ही इज माय फ्रेंड राइट नाउ आल्सो, एंड he him and I, we read anthropology together. We had a lot of like combined sessions of PT 365. We took many tests together. It made preparation so much more easier, and it made it so much more like we used to ask questions every now and then. It made it so much more interactive and interesting. So if you can have a partner, go for it, but choose a disciplined partner. Choose a partner who will be a value addition to your preparation, not a burden. तो एक स्टडी पार्टनर अगर आपको मिल सकता है, गो फॉर इट, दैट विल रियली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। पीटी 365 को रिवाइज करने के लिए द बेस्ट ऑप्शन इज क्विज लेना। पढ़ना, क्विज करो उसके अटेम्प्ट। अगर आपको क्विज का ऑप्शन नहीं मिला, आई डोंट नो अभी उन्होंने वो अब इफ दे आर टेकिंग द क्विजेज और नॉट एनी मोर। हमारे टाइम में तो लाइक 2021 में इट वाज देयर। अगर क्विज का ऑप्शन नहीं है, देन मेक अ ग्रुप ऑफ 2-3 पीपल who are preparing together. Ask each other questions. I'm telling you, that is the best possible way to remember anything. When you force your mind to like remember whatever you have read, that is the best possible way of revising your content. बार बार पढ़ने से वो टाइम भी लेता है, and that is not the most efficient thing as well. Okay, so that is the thing about prelims. अब आते हैं एंग्जाइटी पे, विच समबडी वाज आस्किंग दैट एंग्जाइटी बहुत होती है। तो प्रीलिम से पहले भी काफी एंग्जाइटी होती है, एंड प्रीलिम्स इज समथिंग व्हिच इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल एज वेल। अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव good knowledge, they also end up not getting selected in prelims. So definitely there is a reason for anxiety, but do remember that while preparing you don't just need to work upon your knowledge. आपको सिर्फ नॉलेज पे वर्क नहीं करना है, आपको साथ ही साथ आपके मेंटल पीस पे भी वर्क करना है। सो what I used to do is my mental health and my physical fitness was something of top priority to me, always, all the time. So like I dance, so I used to take up dance classes. और अगर डांस नहीं हो पाता था, आई यूज टू हिट द जिम। जिम भी नहीं हो पाता था तो रूम में बैठ के यूट्यूब वीडियो से देखकर वर्कआउट कर लिया। मेडिटेट करती थी मैं, मेडिटेशन वाज सो मच मोर हेल्पफुल टू मी। मेडिटेट करना है, एंड इनफैक्ट जब मैं एग्जाम देती रहती थी प्रीलिम से 2 महीने पहले या मेन से पहले जो 3 महीने का टाइम होता है, उस 5 महीने में तो मेरी मेडिटेशन और बढ़ जाती थी क्योंकि एंग्जाइटी भी बढ़ती थी, तो मेडिटेशन मुझे कंपैरेटिवली अपनी बढ़ानी पड़ती थी। योगा करना, yoga was also so much more de-stressing. So choose these positive things, and of course have a good social circle, a social circle that encourages you, जो आपके लिए एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है आपके प्रेपरेशन में। अगर आपकी मतलब इफ यू आर लकी लाइक मी, आई वाज वेरी लकी इन दिस दैट आई हैड अ फैमिली व्हिच like really supported me.
अगर आपकी फैमिली उतनी सपोर्टिव नहीं है या यू डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ फैमिली बैकग्राउंड, मेक अ सोशल सर्कल इन विच यू हैव सच सपोर्टिव फ्रेंड्स. स्पेंड टाइम विद देम. स्पेंड टाइम एटलीस्ट 1 hour 2 hour हर दिन उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ हंसो, like go on movies, watch something, do something interesting and fun with them. It will de-stress you a lot, because then you'll realize that यूपीएससी का एग्जाम ही है, आपकी लाइफ उससे बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्यादा मैटर करती है. एवरी डे रिमाइंड योर सेल्फ दिस, that okay, it's an exam, it is a goal, it is very important, but it is not the be all and end all of it. So do these things as well: yoga, meditation, workout, and a good social circle. These are the things that will help you de-stress yourself. Also go for journal writing. Whenever you are feeling anxious, write about the things that you are grateful for, write about the things that you have worked upon, write about the things that you have improved. All these things, write about the positive things in your life, and you'll feel very de-stressed. Okay. अभी एक साल के लिए a lot of people are asking, एक साल की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. तो एक साल की जो स्ट्रैटेजी है, दैट शुड बी फेयरली, दैट इनिशियली जो है आप प्रीलिम्स और मेन दोनों को मिलाकर प्रिपेयर करो. अब मिलाकर कैसे प्रिपरेशन की जाती है? तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने पॉलिटी उठाया है, पॉलिटी आपने पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा या 3 चैप्टर पढ़ा, पार्लियामेंट पढ़ा फॉर दैट मैटर, पार्लियामेंट के आपने एमसीक्यूज भी लगाए उसके बाद, और उसके उसी के बेसिस पे 5 क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करी. when you sit to write answers initially, it is going to be difficult. और आपको हर 2 लाइन पर 2 सेंटेंस जब आप लिखोगे, इनिशियली तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा लिखना क्या है. इट विल बी अ ब्लैंक पेपर जिसपे आप बस स्टेयर कर रहे हो, एंड यू स्टार्ट फीलिंग स्टूपिड कि मैं ये कर क्या रहा हूँ, कि मैं बस एक ब्लैंक पेपर की तरफ स्टेयर कर रहा हूँ. तो इनिशियली यू विल फील वेरी स्टूपिड, बट उसको वो करना, इंड्योर करना है फीलिंग को, एंड यू हैव टू कीप ऑन राइटिंग. Initially, even if you write some like absolute bullshit stuff, absolutely something gibberish, and you don't make sense of it, it's fine. Everybody starts like that. I remember the first test I wrote, 20 questions होते हैं, मैंने 9 questions ही लिखे थे, and then I came out of the examination hall. I felt like, oh my god, I failed in the first test itself, but at least I wrote 9, at least I went to write the test. So just go for the writing practice. इनिशियली आप 2-3 क्वेश्चन के आंसर लिखना शुरू करो. जो भी लिखते हो आप, अच्छा बुरा जो भी, रीड इट अगेन, रीड इट नेक्स्ट डे, किसी को भेजो जो आपको लगता है कि ओके, दिस पर्सन इज knowledgeable enough to understand whatever I've written, and ask for their feedback. सबसे ज्यादा अच्छा फीडबैक आपको आपसे ज्यादा कोई और नहीं दे सकता. सो आफ्टर 2-3 days, रीड इट अगेन, एंड यूल रियलाइज कि अच्छा, दिस इज द मिस्टेक दैट आई एम मेकिंग, दिस इज नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल, और लाइक आई एम saying the same thing again and again, और ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो गए. सो एनालाइज योरसेल्फ एंड देन again write the same answer, or take up something else, but write again. Maintain discipline of writing answers and answering MCQs. These are the only 2 things that you're supposed to do initially 4-5 months. जब आपके 4-5 महीने इसको करते करते हो गए, और एक शेड्यूल बनाइएगा कि आपको पॉलिटी के कितने टाइम देने हैं, आपको एनवायरमेंट को कितना टाइम देना है. वो शेड्यूल डुएबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए. ये नहीं करना है कि मुझे 5 दिन में लक्ष्मीकांत खत्म करनी है, बिल्कुल नहीं. दैट विल नॉट वर्क. वो याद भी नहीं रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है, वो 5 दिन वेस्ट है. फिर गिव योर सेल्फ इनफ टाइम. जैसे मैं तो बहुत टाइम देती थी पॉलिटी को, मैं 25 दिन देती, 20-25 दिन देती थी, क्योंकि उसका मुझे पता है कि बहुत सिग्निफिकेंस है. सो गिव इट इनफ टाइम, एंड अकॉर्डिंगली आप शेड्यूल करना, उसको फॉलो करना. और अगर कुछ पोर्शंस मिस हो जाता है, टेस्ट कभी पोस्टपोन मत करना. टेस्ट हमेशा टाइम पर लिखना, और कुछ पोर्शंस जो मिस हो जाता है वो बाद में आप यू कैन टेक इट अप लेटर. बाकी आप शेड्यूल से चलना, ठीक है. मैंने पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, ये सब, इन सब की जो रिविजन है, स्ट्रैटेजी, वही बताया कि क्वेश्चंस आंसर करो, एमसीक्यूज आंसर करो, और आंसर राइटिंग करो. दैट इज द बेस्ट रिविजन स्ट्रैटेजी. और अगर बिल्कुल मन नहीं कर रहा है तो डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स. दैट इज अनदर ब्यूटिफुल स्ट्रैटेजी. सो दैट्स द थिंग. अब आती है, अब ये बात हो गई पहले 4-5 महीने की, फिर 2 महीने फुल्ली डेडिकेटेड प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करो. आई एम टेकिंग एवरीवन इज गोइंग फॉर देयर फर्स्ट अटेम्प्ट. तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है, डेफिनेटली एकदम डेडिकेटेड टाइम देना प्रीलिम्स को.
2 महीने की अच्छे से, उसमें पेपर्स लगाना बहुत सारे, रिवाइज़ करना, डिस्कस करना, गो फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के बाद पेपर मैच करना, इफ यू आर देयर इन दैट रेंज, अगर आपके कट ऑफ रेंज से 5-10 नंबर कम भी हैं, स्टिल start preparing for main. You don't know what the cutoff is going to be. Start preparing for main. Give yourself 2-3 days break and then start preparing for main right away. मेन के लिए आपने जो 4 महीने की इनिशियल प्रिपरेशन की थी, उसमें आपको नॉलेज बिल्डअप डेफिनेटली हो चुका था। अब इसमें बहुत सारे लोगों के अलग-अलग तरीके होते हैं। नोट्स बनाना है कि नहीं, मैं इस क्वेश्चन को एड्रेस करती हूँ। जो नोट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि सबका अलग-अलग तरीका होता है बनाने का। जैसे इनिशियली मैं क्या करती थी, मैं बहुत ही डिटेल्ड नोट्स बनाती थी। तो मुझे बाद में समझ आया कि एग्ज़ाम से पहले तो मैं रिवाइज़ ही नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर फ़ायदा क्या? तो देन आई स्टार्टेड मेकिंग वेरी कंसाइज़ नोट्स। ट्राई टू मेक वेरी कंसाइज़ नोट्स। ऐसे नोट्स होने चाहिए कि आपको पेपर से 2 दिन पहले भी अगर आप याद करने की कोशिश करो, तो वो हो जाए कवर। वैसे नोट्स बना के अगर आप इनिशियल 4 मंथ्स में बना सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं बना, आपने सिर्फ पढ़ाई करी, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखी, कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करने की कोशिश की, स्टिल फाइन। आप वेरी गुड, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। जब प्रीलिम्स हो जाता है, देन स्टार्ट मेकिंग कंसाइज नोट्स। कंसाइज नोट्स ऐसे होने चाहिए, आपका ये होना चाहिए गोल कि हर बार जब आप टेस्ट लिख रहे हो, टेस्ट लिखने से पहले 1 दिन पहले आपके पास वो नोट्स होने चाहिए और उस 1 दिन में आप वो नोट्स रिवाइज कर सको। एथिक्स में मैंने ये किया था, मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाए थे, दैट रियली वर्क, दैट रियली हेल्प मी। तो शॉर्ट नोट्स बनाना उस टाइम पे, उसको रिवाइज करते जाना, टेस्ट लिखना मेन के लिए। अब मेन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, मैं वो बताती हूँ आपको। मेन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है राइटिंग स्पीड और प्रेजेंटेशन का तरीका। वट एवर यू हैव स्टडीड, आपने कितनी ही पढ़ाई क्यों ना कर ली हो, आपने कितनी ही बुक्स क्यों ना पढ़ ली हो, कितना ही नॉलेज क्यों ना गेन कर लिया हो, until and unless आपके पेपर में वो नहीं दिखता है, it won't do anything for you. So like improve your writing speed, improve the, like literally the number of letters and words you write on paper in the amount of 3 hours of time, the span of 3 hours. Improve your writing speed, improve your handwriting, and work on your presentation. ये लाइव सेशन में कुछ दिक्कत हो रही है क्या? प्लीज कमेंट। ये दिस इज लाइव ओनली। या so what I was saying, that improve your writing speed, improve your writing skills. प्रेजेंटेशन के बारे में मैं बताती हूँ। प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आपको यू हैव टू डिवाइड योर आंसर इनटू इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। मतलब उसमें लिखना नहीं है इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इन योर मेंटल फ्रेमवर्क एक इनिशियल समरी होनी चाहिए उस टॉपिक की, कि फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आया है जनरेटिव एआई का, तो पहले आप 2 लाइन में ही ये बता दो जनरेटिव एआई होता क्या है। 2 लाइन में आपने उसको इंट्रोड्यूस किया। देन व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, आई यूज्ड टू मोस्टली मेक अ डायग्राम ऑफ अ बेसिक प्रोसेस, या उसको अगर आप पिक्टोरियली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, वेरी गुड, दैट विल फेच यू सम हाफ और 1 मार्क एक्स्ट्रा। तो मैं वो करती थी। देन अब वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है जनरेटिव एआई के बारे में, कि कुछ भी पूछ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये पूछा जा सकता है कि ये जॉब्स अगर इतने लॉस हो रहे हैं तो शुड वी गो फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप उसके आर्ग्यूमेंट्स दो। आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक साइड के नहीं देने हैं, आर्ग्यूमेंट्स दोनों साइड के देने हैं कि हाँ, जॉब लॉस होना इज अ प्रॉब्लम, तो क्यों है ये प्रॉब्लम, एंड जॉब लॉस फिर भी एआई हमें क्यों परसू करना चाहिए, उसके लिए क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। एंड देन एंड विथ समथिंग पॉजिटिव, कि इंडिया ने क्या स्टेप्स लिया एआई के लिए। जैसे नीति आयोग हैज कम अप विथ अ पॉलिसी, मेंशन दैट नीति आयोग हैज कम अप विथ दिस पेपर एंड लुक फॉरवर्ड टू एआई, कि हम और क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी मेक एआई एज socially good as well. End on that note, that will be your answer. Given that it's a 10 marker or 15 marker, number of points ज्यादा होंगे, इंट्रोडक्शन लंबा होगा अगर 15 मार्कर है तो, एंड कंक्लूजन भी आपका मोर स्पेसिफिक और डिटेल्ड हो सकता है। वैल्यू एडिशन के बारे में बताती हूँ मैं। ये आपका हुआ मेन के आंसर राइटिंग। जो वैल्यू एडिशन की बात हो रही है,
Can you be specific in your question? As in, what are you asking? How to do value addition? Are you asking कि vision के value addition कैसे करने हैं? Please be specific in your question. बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ. आवर्स बिल्कुल मैटर नहीं करता है. इट इज द एफिशिएंट स्टडी आवर्स विच मैटर्स मोर. जितना भी टाइम आप दे रहे हो उतने टाइम आप बिल्कुल उसको रिटेन कर पा रहे हो, उसको याद कर पा रहे हो, उसके बेसिस पे चीज़ों को आंसर कर पा रहे हो. दैट शुड बी योर ओनली गोल कि आपने उसको इतनी कंसेप्चुअली इतनी क्लैरिटी से समझा है कि आप उससे पेरिफेरल चीज़ें भी अगर पूछी जा रही है सो यू कैन आंसर इट, स्टिल यू कैन आंसर इट. So that should be your goal before reading anything. So that is the thing about main जो होता है एग्जामिनेशन. इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रिपरेशन, इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग एज वेल. 5 दिन लगातार आपको पेपर लिखने होते हैं और हर दिन 2-2 पेपर्स होते हैं. तो मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन योर इंड्योरेंस एज वेल. ऐसा भी करना टेस्ट सीरीज लिखते वक्त कि कुछ दिन ऐसे करना कि 2 पेपर्स लिखना, ताकि आपको खुद की लिमिट पता चले कि आप अच्छा ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सेकंड पेपर कम लिख रहे हो. तो ऐसे करके ना प्रैक्टिस कर करके यू विल एबल टू अंडरस्टैंड योर ओन लिमिट्स एज वेल एंड देन वर्क अपॉन इट. Okay, so the question is what data to include in answers and what examples to collect and sources to collect from value. Okay, I get your question. So इस पे मैंने exactly एक document था which Vision IAS ने भी एक बार value addition पे information पे publish किया है. And the one that I read, I don't remember the source name. If you want to like really know कि कौन सा exactly document मैंने पढ़ा था, I will forward my book list and document list to you guys. Come on my Insta and YouTube as well. I'll give you the book list. मैं YouTube पे definitely एक video डालूंगी जिसमें I'll detail all my book list and you can check it out. क्योंकि अभी मुझे exactly याद नहीं आ रहा, but I am sure that Vision IAS also comes up with a data का document. मैंने क्या किया, उन सारे जो डेटा और इन्फॉर्मेशन थी उसको बिल्कुल रट लिया. I used to like memorize all the facts. उसमें क्या था कि उन्होंने बिल्कुल टॉपिक वाइज डेटा दे रखे थे कि विमेन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है, पोल्यूशन से रिलेटेड ये डेटा इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक पोल्यूशन से रिलेटेड ये डेटा इंपॉर्टेंट है. तो उन सबको मैंने बिल्कुल रख लिया था एंड आई यूज टू कोट इट इन एवरी आंसर. मैं डेटा को बहुत ही प्रोफ्यूजली कोट करती थी और सब्सटैंशिएट करती थी अपने पॉइंट्स को उन डेटा से. अगर आपका पॉइंट डेटा से सब्सटैंशिएटेड होता है it will give it more weightage. So always try to use data in your answers. Examples जैसे केस स्टडीज आप यूज कर सकते हो. अगर डीबीटी पे कोई क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, या फिर पीडीएस पे कोई क्वेश्चन आता है, गो फॉर छत्तीसगढ़ मॉडल. तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो डेफिनेटली आपको कोट करना चाहिए. दिस गिव्स द एग्जामिनर the perspective that this candidate has an overall knowledge about what is good and what should be implicated, what should be emulate in government policy. So that is the way you should include data and examples in your answers. Okay, there's one portion, economics. I missed economics in my prelims and main as well. Economics में क्या होता है कि economics में the goal should be conceptual clarity. Economics के questions जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं वो बहुत कंसेप्चुअल होते हैं. उसमें अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है यू विल डू वेरी गुड इन दैट. तो मैंने क्या किया था, अब क्योंकि अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट आई हैव क्लियर्ड यूपीएससी इन माय 6th अटेम्प्ट एंड आई हैव स्टडीड फॉर 6 years, so I had a lot of time. I went through Mrinal videos on economics and that gave me very good conceptual clarity in economics. But again it is very time taking, so I don't recommend it because utna zyada required nahi hai. So what you can do, a very easy way and a very efficient way of studying economics is read newspaper and read current affairs magazines. And अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही है, कोई एक टॉपिक ऐसा है कि आपको नहीं समझ आ रहा है, गूगल इट. इन्वेस्टोपीडिया एक ऐसा वेबसाइट है जो टर्म्स को बहुत ही इजी वे में एक्सप्रेस करता है एंड यू कैन रीड इट. यू कैन वॉच सम यूट्यूब वीडियोज इज वेल. अगर आपको फिर भी कोई बुक पढ़नी है तो शंकर गणेश की बुक है आई थिंक, विच इज इकोनॉमिक्स के लिए काफी इजी बुक है जो अच्छे से समझ आ जाती है. तो यू कैन गो थ्रू दैट, बट द बेस्ट वे इज रीड समथिंग, read on
internet, read on Google, watch some open like free videos on YouTube on economics and you'll understand. इतना डिफिकल्ट नहीं है इकोनॉमिक्स, डरावना लगता है बट वो बहुत ही आसान है. द गोल्डन रूल इज जैसे गवर्नमेंट है एंड you have to understand government also from the perspective of an individual person. How does an individual person manages his or her own money? तो गवर्नमेंट भी एक वैसा एंटिटी है, उसी के बेसिस पे सब कुछ चलता है. सो go through that, then take up tests. It's doable, it's easy. Economics is an easy subject, don't get scared of it. मृणाल के वीडियोस जो हैं वो पहले तो यूट्यूब पे अवेलेबल थे. गो ऑन देयर वेबसाइट, मृणाल के वेबसाइट पे जाइएगा. वो आई थिंक दे आर उन्होंने पावर पॉइंट स्लाइड्स भी डाल रखे हैं नीचे और उससे आपको लिंक भी मिल जाएगा जो इकोनॉमिक्स के वीडियोस हैं. मृणाल से इनफैक्ट मैंने ज्योग्राफी के स्लाइड्स भी देखे थे एंड दे वर आल्सो वेरी गुड, सो यू कैन गो एंड चेक दैट एज वेल. डेली का टाइम टेबल क्या होना चाहिए? तो जब आप वो इनिशियल वाले टाइम में होते हो, वो 4-5 महीने का टाइम, खैर डेली का टाइम टेबल इज सेम ओनली. जो सुबह आप, ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, develop the habit of waking up early. Do not fall into the trap of being awake throughout night and उससे आपको ये खुशी मिल रही है कि आप पूरी रात भर जग के पढ़ाई कर रहे हो. नहीं, आपके सारे एग्जाम्स दिन में होने वाले हैं, सुबह होने वाले 9 बजे. यू नीड टू बी एफिशिएंट एट दैट टाइम. 9 बजे से लेकर 11 बजे तक या 12 बजे तक का जो मेन का टाइम होता है, उस टाइम में आपको सबसे ज्यादा एफिशिएंट होना है. सो डू स्टडी इन द डे टाइम, डू स्टडी, मेक योर सेल्फ एफिशिएंट इन द डे टाइम. और सुबह उठने की कोशिश करिए. इफ नॉट, मैं ये नहीं कह रही कि 4 बजे उठिए, सुबह 4 बजे वो सब एक ग्लैमराइज्ड चीजें हैं. 4 बजे उठने की आपको जरूरत नहीं है. वेक अप एट अ डूएबल टाइम ऑफ 7 o'clock एंड इसको मेंटेन करिए. 7 बजे उठिए, गिव योर सेल्फ सम टाइम टू रिलैक्स. थोड़ा बहुत आपने वर्कआउट कर लिया, वॉक कर लिया, मेडिटेट कर लिया, योगा कर लिया, बिल्कुल फ्रेश होके ना, ब्रेकफास्ट वगैरह करके सिट 8:30 पे आप पढ़ने बैठ जाइए. 8:30 जो सुबह का टाइम होता है, इट्स अ वेरी एफिशिएंट टाइम. तो 8:30 बजे उठ के आप पढ़ना शुरू कर दीजिए. तब आप 9 बजे तक आपका दिमाग बिल्कुल अच्छे से चलने लग जाएगा. उस टाइम पे टेक अप समथिंग विच यू फाइंड डिफिकल्ट, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है इट्स वेरी एफिशिएंट. अगर आप उस टाइम पे वो चीजें उठाओगे, आपको रेजिस्टेंस नहीं होगी उतनी ज्यादा. तो आप वो वाले पोर्शन, जैसे कुछ लोगों के लिए न्यूज़पेपर डिफिकल्ट होता है, कुछ लोगों के लिए जैसे इकोनॉमिक्स किसी ने पूछा, किसी को पॉलिटी नहीं समझ आती, तो टेक अप दैट पोर्शन विच यू फाइंड डिफिकल्ट. 3 घंटे का वहाँ सेशन डालिए. 3 hours सिट एंड स्टडी बहुत अच्छे से, बिल्कुल एफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन के साथ. देन अगेन टेक अ ब्रेक, इधर उधर थोड़ा वॉक कर लिया. हैव योर लंच करने के बाद अगर आपको आधे घंटे की नैप की जरूरत है, गो फॉर अ नैप. नैप विल ओनली मेक यू मोर, लाइक आपका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव ही करेगा. देन अगेन सेकेंड हाफ में टेक, थोड़ा कम करके 2.5 hour का एक सेशन ले लीजिए. 2.5 hours की एक स्टडी, वो एक सेशन में कर लिया. देन अगेन इवनिंग में ब्रेक लीजिए. इवनिंग में गो फॉर अ वॉक आउटसाइड योर रूम. पूरे टाइम रूम के अंदर नहीं रहना है, पूरे टाइम लाइब्रेरी में नहीं रहना है, बाहर जाइए, पार्क में जाइए, अपने दोस्तों से मिलिए, कुछ बाहर थोड़ा बहुत घूम लिया, खा लिया. तो हैव अ ब्रेक लाइक दैट, थोड़ा एक लाइट ये कर लिया. अगेन रात में एक सेशन करिए 2 घंटे का. तो आपके पास 7.5 घंटे का बिल्कुल टाइम ऐसा हो गया. Now, according to your capacity, you can increase it as well. But these 7.5 hours should be very efficient and बिल्कुल उसको वहाँ बैठ के पढ़ाई करनी ही करनी है. This is very much doable. अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है. बट उनको फिर आपके ऑफिस के साथ साथ भी प्रिपेयर करने की जरूरत है. आई वॉज नॉट इन जॉब व्हेन आई वॉज स्टडिंग, सो आई कैन नॉट comment on that. That must be very difficult. But people who are not working, they can definitely study for 7.5 to 8 hours very efficiently in a very concentrated manner and have your own mental health and physical fitness running as well. So that should be your routine. Sleep between 10 to 11. उस टाइम पे आप बेड पे चले जाओ, थोड़ा टाइम भी लग रहा है सोने में, तो भी आप सुबह 7 बजे तक आराम से उठ सकते हो. दैट शुड बी योर रूटीन अकॉर्डिंग टू मी. दैट्स वेरी सस्टेनेबल एज वेल. एग्रीकल्चर, हाँ, शंकर आयस की जो बुक है एनवायरमेंट की, उसमें एक एग्रीकल्चर चैप्टर है, वेरी गुड चैप्टर.
बहुत ही अच्छे से उसमें उन्होंने, मतलब छोटा है चैप्टर, मतलब इट्स नॉट इंटायर बुक, इट्स ओनली वन चैप्टर, बट इट्स उसका कॉस्ट बेनिफिट काफी अच्छा है। मेमोराइज इट, उसको बिल्कुल रट लीजिए। एंड उसके बाद ज्यादा से ज्यादा फोकस टेस्ट सीरीज पे देना है, न्यूज़पेपर पे देना है। काफी कुछ न्यूज़पेपर में आता रहता है, विच इफ यू रीड इट यूल अंडरस्टैंड, यूल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। हाँ, अब आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट पे। ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्या, ऑप्शनल सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि you should choose your optional very wisely. This is a mistake that I did, and I'm telling you from my own experience. This is the only reason why I took so much time in getting selected, that I chose an optional which was not according to my capacity and capability. I am a person who always had a math background, and mathematics background होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा लिख नहीं पाती थी। और जो मेरा लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड था, उसके लिए मैंने जो ऑप्शनल चूज किया वो है फिलोसफी, विच वॉज नॉट राइट फॉर मी, एंड आई एंडेड अप स्कोरिंग वेरी लो इन ऑल द ईयर्स। इन द लास्ट अटेम्प्ट आई टुक अ ब्रेक, मैंने 2 साल का ब्रेक लिया। आई डिड नॉट अपियर इन 19 and 20, and I changed my optional from philosophy to anthropology, and I got selected in 4 government exams in the span of 2 years, just with that optional. I got selected in 2 UPPCS, 1 BPSC, and 1 UPSC, completely with the help of anthropology. So choose your optional very wisely. Choose an optional which is good for you. I'm not saying that anthropology is the best optional. I'm not saying political science is the best optional, but an optional that you, there should be only 2 criteria: an optional that you find interesting and you are right, and second, an optional which is scoring as well in UPSC. Don't go for something which is so low scoring that even if you work really hard, वो फिर भी आपको कम नंबर ही देगा। तो ऑप्शनल चूज करने की ये स्ट्रैटेजी होती है। एक बार आपने पिक कर लिया, गो फॉर टॉपर्स के, बहुत सारे टॉपर्स हैं हर ऑप्शनल के, जिन्होंने इंटरनेट पे डाल रखा है कि उन्होंने क्या फॉलो किया था, उनके क्या नोट्स थे, उन्होंने क्या बुक लिस्ट डाली थी। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रोपोलॉजी में अनुदीप दुरिशेट्टी हैं सर, एंड सचिन गुप्ता सर हैं। इन्होंने अपनी बहुत ही डिटेल्ड बुक लिस्ट डाली थी, मैंने उसको फॉलो किया था, एंड मैंने उसके बेसिस पे अपने नोट्स बनाए। अब मैंने कोचिंग भी करी एंथ्रोपोलॉजी की, बट इट वॉज नॉट हेल्पफुल एट ऑल। मैंने कंप्लीटली अपने ही नोट्स बनाए थे, मैंने उसी को रटा। व्हाट वाज मोर हेल्पफुल वाज अगेन टेस्ट सीरीज। मैंने एंथ्रोपोलॉजी में बाला सर की टेस्ट सीरीज की थी एंड पवन सर की टेस्ट सीरीज की थी, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल थी। मैं टेस्ट लिखती थी, ऑनलाइन उसको अपलोड करती थी, दे यूज टू गिव मी एनालिसिस, फिर मैं उस पर वर्क करती थी, मैं नेक्स्ट टेस्ट फिर से लिखती थी। दैट यूज टू बी माई वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द ऑप्शनल। और इवेंचुअली माई ऑप्शनल स्कोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते रह गए थे। टेस्ट सीरीज में ही देखा था मैंने कि इनिशियली जहाँ मुझे 70-80 आते थे, बाद में काफ़ी इंप्रूव हो गए थे, 140-150 आने लग गए थे मुझे। आंसर राइटिंग फॉर डे 1 जो है, अगेन मैंने पहले भी एड्रेस किया है इसको, डेफिनेटली इट विल बी डिफिकल्ट। आपको पहले दिन जब आप आंसर लिखना शुरू करोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, आपको वो बहुत ही दिमाग ब्लैंक लगता है, समझ नहीं आता कि स्टार्ट कैसे करें। एक इजी स्ट्रैटेजी ये होती है आंसर राइटिंग की कि क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पे हो, जिस भी टॉपिक पे हो, आप पहला स्टेटमेंट ये लिखिए, आपके अकॉर्डिंग वो चीज है क्या। मतलब अगर क्वेश्चन है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे, 2 लाइन आप ये लिख दीजिए कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है। आपको स्टार्टिंग मिल गई, देन यू कैन गो एंड राइट मोर अबाउट इट, देन एड्रेस द क्वेश्चन। डोंट, अगेन दिस इज ऑल्सो वन मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ पीपल मेक, इज वो लिखते हैं जो उन्हें आता है, वो नहीं लिखते जो क्वेश्चन पूछ रहा है। रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन एंड एड्रेस द क्वेश्चन पॉइंट ब्लैंक। सिर्फ आप उसी को लिखिए, उसके पॉइंट्स बनाना शुरू करिए। Conclude with something positive, some step that the government has taken, some futuristic outlook. That's it. Initially, छोटा लिखिए, बाद में उसको बढ़ाते जाइए. That should be the strategy. Okay, so that's what about main is, about optional is. अब इंटरव्यू पे आते हैं। तो मेन के बाद ब्रेक लीजिए अच्छे से, 15-20 डेज का बिल्कुल। गो फॉर अ ट्रिप, गो टू योर होम इफ यू आर स्टेइंग आउटसाइड, डू समथिंग लाइक टेक अ ब्रेक। देन जैसे रिजल्ट आता है, ना भी वेट नहीं करना चाहिए टेक्निकली, शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। एंड इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होता है वो ये होता है कि प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चनर बेस्ड ऑन योर डैफ। डैफ इज द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म।
डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में यूपीएससी आपसे सारी डिटेल्स पूछता है कि आपका होम टाउन क्या है, आपका जन्मदिन क्या है, आपके हॉबीज क्या है, आपने लीडरशिप के क्या चीजें आपने पहले कर रखी है, ऑप्शनल क्या है, ऑल दीज थिंग्स, और योर वर्क एक्सपीरियंस इज वेल। जो भी आपका, पेन के बारे में मैं बात करूंगी अभी, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस वगैरह जो भी आपने ड्राफ्ट में लिखा है, उसके बेसिस पे प्रिपेयर अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चनेयर एंड आंसर दोज क्वेश्चंस इन अ वेरी ब्रीफ एंड शॉर्ट मैनर, 4 या 5 लाइन्स में। Not just your DAF, but also the issues in your current affairs and your own educational background. For example, if you're an engineer, जैसे मैं engineer हूँ electronics and telecommunication की, so telecom becomes important. Electronics becomes important. So based on that, prepare questionnaire, answer those questionnaire, prepare उसका 4-5 लाइन में answers, take up some mocks and see how you're delivering. Not just the content of the answer, but delivery matters a lot in interview. So see what your body language is, analyze your own performance in every interview, in every mock interview, and uske basis pe work on the improvement, on the tips that these people give you. These people are experienced people. Send these interviews to your friends as well and see what they come up with. If your persona is coming out to be positive, coming out to be enthusiastic, it's good. पेन के लिए जो है जो V5 पेन है, दैट इज वेरी गुड, और थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, बट देन देर इज वन पेन कॉल्ड एयर माइक्रो, दैट इज, उससे ही मैं लिखा करती थी, मेरी हैंड राइटिंग उससे बहुत अच्छी बनती थी. सो दीज 2 पेन्स, V5, V7 एंड यूनिबॉल एयर माइक्रो, दीज 3 पेन्स आई विल सजेस्ट फॉर राइटिंग इन मेन. प्री में मैंने विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज लगाई थी और इनसाइट्स आईएएस की भी कुछ पेपर सेल्फ सॉल्व किया था. मेन में मैंने जीएस में विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज लगाई थी और ऑप्शनल में मैंने बाला सर L2A एंथ्रोपोलॉजी की और पवन सर की टेस्ट सीरीज लगाई थी. एक दिन में सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके अकॉर्डिंग आप पे डिपेंड करता है कि मेरे हिसाब से 3 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम है दैट यू शुड स्टडी इन अ डे. उसमें आप ऐसे डिवाइड कर लो कि जैसे मैं प्रीलिम्स के लिए जब प्रिपेयर किया करती थी तो PT65 मेरा चलता ही रहता था, जैसे जैसे वो आता था मैं वैसे वैसे उसको पढ़ते जाती थी. तो एक डेडिकेटेड टाइम तो PT65 के लिए हो जाता था, एक डेडिकेटेड टाइम न्यूज़पेपर के लिए हो जाता था. उसके अलावा मैं 2 सब्जेक्ट क्या करती थी मैक्सिमम, कि पॉलिटी कर लिया तो पॉलिटी के साथ हिस्ट्री कर लिया, एक कंसेप्चुअल चीज की तो एक फैक्चुअल कर लिया साथ में, इस तरीके से थोड़ा बैलेंस करके. 2024 के लिए टेस्ट सीरीज कब से लगाएं, तो यू कैन स्टार्ट राइट नाउ ऑल्सो. यू कैन स्टार्ट राइटिंग, लाइक आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो. टेस्ट सीरीज जो है वो आप नवंबर से लगा लेना. कोचिंग की नीड नहीं है, इट्स नॉट एसेंशियल. इट विल मेक योर लाइफ अ लिटिल ईजियर मे बी, इट्स डेफिनेटली नॉट एसेंशियल. समटाइम्स इट कैन बी अ नेगेटिव फैक्टर एज वेल, वो टाइम वेस्ट करेगा आपका. बट कोचिंग से एडवांटेज क्या मिलता है मैं आपको बताती हूँ. कोचिंग से एडवांटेज मिलता है 2 चीजों का. आपको एक पीयर ग्रुप मिलता है, आपको एक मेंटर मिलता है. तो भले आप क्लास अटेंड ना करो, लेकिन आप इस पीयर ग्रुप और मेंटर का फायदा उठा सकते हो. आपको कुछ भी डाउट आता है आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हो. सो दैट इज वन एडवांटेज ऑफ कोचिंग. ऐसे के लिए आई कैन से दैट आई वाज गुड एट इट, क्योंकि मेरे स्कोर काफी अच्छे रहे थे. तो आई कैन टेल यू अबाउट ऐसे दैट मैं क्या करती थी. मैं ऐसे को मोस्टली आई वुड स्टार्ट विथ अ पोएम, जो कि मैं वहीं बैठकर बनाती थी. 4-5 लाइन की एक पोएम से स्टार्ट किया ऐसे, फिर एक शॉर्ट इंट्रो दिया पूरी टॉपिक का, देन कम अप विथ वेरी थॉट प्रोवोकिंग आर्ग्यूमेंट्स फॉर द टॉपिक, जो रीडर को भी ये मजबूर करे सोचने के लिए कि अच्छा दिस इज अ लाइन ऑफ थिंकिंग, दिस इज ऑल्सो अनदर लाइन ऑफ थिंकिंग. तो आर्ग्यूमेंट्स दीजिए आप. अब आर्ग्यूमेंट्स को ब्रेक करने के बहुत तरीके होते हैं. आप उसको इंडिविजुअल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल ऐसे पर्सपेक्टिव में जा सकते हो. इंडिविजुअल, सोसाइटी और वैसे पर्सपेक्टिव में जा सकते हो, या फिर आप उसको सोशली, पॉलिटिकली, टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली ऐसे ब्रेक कर सकते हो. बट जब आप ब्रेक कर रहे हो, डू इंश्योर दैट योर राइटिंग हैज अ फ्लो टू इट. आपका फ्लो नहीं टूटना चाहिए. जैसे जब आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ते हो तो यू रियलाइज दैट आपको पढ़ते हुए बड़ा लूसिड सा हो गया, मतलब शुरू से एंड तक आपने पढ़ा और बहुत मजा आया.
वैसा गोल होना चाहिए एसे लिखने का, कि एसे पढ़ने वाले को मजा आए कि हाँ ये आर्ग्यूमेंट्स में बहुत ही अच्छा फ्लो था। और जब आप कंक्लूड कर रहे हो तो कंक्लूजन में ट्राई टू ब्रिंग द इनिशियल, जो आपने पोयम लिखी थी या इनिशियल अगर आपने कोई कोट लिखा था, कोई कहानी लिखी थी छोटी सी, उसको भी एंड में आप लेकर आओ, सो दैट योर होल एसे जो है वो एक एक बाइंड सा हो जाता है, इट बिकम्स वेरी कंसाइज एंड ए वेरी बाइंडेड थिंग। तो ये हुई एसे की बात। दैट वाज ऑल अबाउट एसे। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में अभी तैयारी स्टार्ट कैसे करें? रीड न्यूज़पेपर्स। अभी आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जाम, राइट? सो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, थोड़ा बहुत क्विज वगैरह में पार्टिसिपेट करिए, कॉलेज में होते होंगे। स्टार्ट लाइक widening your perspective and your knowledge. That's what you should do right now. PT365 जो है, छोड़ती तो मैं कोई भी नहीं थी, सारी PT365 में पलटा तो लेती थी, बट ये देख के पढ़ती थी कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई एक PT365 कंप्लीटली छोड़ दी, पढ़ना सारे है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि सारी PT365 में सब कुछ इम्पोर्टेंट है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से समथिंग लाइक IR का PT365 उठा लिया, अब IR की PT365 में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होगी, अब कुछ चीजों में एनालिसिस लिखा होगा कि मतलब जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो फॉर प्रीलिम्स दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, मेन के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट। सो फिल्टर आउट while you are reading, don't leave an entire PT365 but filter out the content while you are reading it. मिस्टेक, पहली मिस्टेक मैंने यही की कि मैंने ऑप्शनल गलत चूज किया, और दूसरी मिस्टेक मैंने ये की गलत चूज करने की वजह से मुझे उसको पढ़ने का मन नहीं करता था, तो मैं उसको टाइम भी नहीं देती थी ज्यादा। और तीसरी मिस्टेक ये की कि इनिशियल अटेम्प्ट्स में मैं टेस्ट लिखती नहीं थी ज्यादा, तो मेरी राइटिंग स्पीड अच्छी नहीं थी। सो दीज आर द 3 मिस्टेक्स दैट आई डिड। CSAT में गो फॉर सम मटेरियल ऑफ कैट प्रिपरेशन, आई वुड रेकमेंड IMS कैट, टाइम वगैरह के मटेरियल होते हैं कैट प्रिपरेशन की, गो फॉर दैट। इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू जैसा नहीं होता है। इंटरव्यू जो होता है इट्स मच मोर रिलैक्स्ड, एंड आप भले अंदर से एंशियस हो, लेकिन जो वहाँ का इन्वायरमेंट होता है वो रिलैक्स्ड ही होता है। एक जो चेयरपर्सन है, जो यूपीएससी के मेंबर है, वो सामने बैठे रहते हैं, और चारों तरफ आपके ऐसे राउंड बना के बाकी के मेंबर्स रहते हैं। द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद चेयरपर्सन, चेयरपर्सन आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं, एंड वो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि उनको बिल्कुल ऐसे दिख गया आपके डैफ में, तो उनसे स्टार्ट करते हैं। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन, देन नेक्स्ट पर्सन, ऐसे करके चलता है। मेरी इंटरव्यू जो फर्स्ट वाली इंटरव्यू थी, इट वेंट फॉर 20-25 मिनट्स, सेकंड वाली इंटरव्यू 40 मिनट्स तक चली थी, एंड सो दैट वाज द होल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू। मेरी यूपीएससी में सिलेक्शन लास्ट में हुई है, यूपीपीसीएस और बीपीएससी में पहले पहले अटेम्प्ट में हो गई थी। इंटरव्यू मिरर, I didn't understand the question. Please ask your question again. And since I have addressed most of the important, like my whole journey, there's one more thing. क्योंकि मैंने 6 साल प्रिपरेशन की है, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया है, एंड फॉर 4 years I didn't have any work as well. तो मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना चाहूंगी कि हाउ टू इंड्योर इन दिस प्रिपरेशन। सो definitely, as I already said, go for yoga, meditation, and workout, physical workout, and your social circle, because that will help you endure in the journey for the long run. So ये सारी चीजें करिए, and second most important thing is have a backup in your mind as well. In your mind, not necessarily आप उसको अवेल करो, बट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर मेरा यूपीएससी नहीं होता है तो दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू। अब वो जो समथिंग है, इट कैन बी एनीथिंग, बट मेक श्योर दैट आपको इस बात का डर ना हो कि अगर यूपीएससी नहीं होता है तो आप सड़क पे आ जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हैव समथिंग इन योर माइंड, सम बैकअप इन योर माइंड, एंड उससे आपको बहुत फियरलेसनेस आएगी, उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। सो डू दैट, एंड ऑल्सो इंडल्ज इन योर हॉबीज। जैसे मैं डांस करती थी तो मैं डांस किया करती थी, कुछ अगर somebody plays instrument, डू दैट वेल। कुछ लोगों को मूवीज देखना पसंद है तो कभी कभार मूवीज देख लिया। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ओन लाइफ and your own mental peace on the pretext that you are preparing hard for UPSC.
नो, यू कम फर्स्ट, योर ओन मेंटल हेल्थ कम्स फर्स्ट, एंड अगर वो स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी नहीं रहेगी. सो टेक केयर ऑफ दैट एज वेल. मैं आई वॉज बोर्न इन बिहार और मैं रांची झारखंड में रहती हूँ. और अब मैं पिछले 7-8 साल से दिल्ली में रह रही हूँ. मैंने हैदराबाद में भी काम किया है, मैंने चित्रकूट यूपी में भी काम किया है. सो दैट्स अबाउट मी. ओके, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन. यूपीपीसीएस जो होता है, यूपीपीसीएस का जो पैटर्न है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू यूपीएससी. सो दैट इज अ गुड थिंग, बिकॉज आप यूपीएससी के साथ पढ़ते पढ़ते वो भी निकाल सकते हो. लेकिन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स से पहले कम से कम आपको एक वीक से 10 दिन आपको यूपीपीसीएस को देना होगा, जिसमें बहुत सारे ऐसे बुक्स आते हैं जिसमें उन्होंने कंसाइज वे में कंसोलिडेट कर रखा होता है यूपी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या करंट अफेयर्स वगैरह को. तो स्टडी आईक्यू के फॉर एग्जांपल वीडियोस कुछ अच्छे होते हैं यूपी वाले, और एक दो और बुक्स हैं जिन्होंने कंसोलिडेट करके रखा रहता है. मैं वो रट लिया करती थी 7-8 दिन पहले, उसको याद कर लिया, और उसके बेसिस पे अगर आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है यूपीएससी का, तो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स भी बहुत सिक्योर हो जाता है. बट यू डू नीड टू रीड दैट वन कंसोलिडेटेड बुक ऑफ यूपी रिलेटेड फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन. और उसके अलावा जो मेन के लिए आपको स्पेसिफिकली सिर्फ एक हिंदी पढ़ने की जरूरत है. हिंदी के अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. यूपीपीसीएस और यूपीएससी बहुत सिमिलर है उसका. ग्रेजुएशन में मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में. इंटरव्यू हिंदी मीडियम से, सी द थिंग दैट आई हैव नॉट डन, आई विल नॉट बी एबल टू रिकमेंड ऑन दैट, क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम से ही किया तो मुझे उसकी नॉलेज नहीं है. इंग्लिश मीडियम के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं. मॉक इंटरव्यू वगैरह मैंने जैसे राउज में लिया था, वाजीराम में लिया था, श्री राम आईएएस में लिया था. तो ऑल ऑफ दीज वर हेल्पफुल, ऑल ऑफ दीज हेल्प मी इन गेनिंग सम टिप्स. हाँ, बिल्कुल यूपीपीसीएस और यूपीएससी से क्वेश्चंस जो हैं मैच कर सकते हैं, दोनों जनरल स्टडीज पे बेस्ड होते हैं. बट यूपीपीसीएस थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल होता है, तो इसीलिए उसमें जो फैक्ट्स का कंपेंडियम है, अगेन कह रही हूँ मैं, जो फैक्ट्स का कंपेंडियम है वो आप डेफिनेटली यूपीपीसीएस वाले जो है वो स्पेसिफिकली एक अलग से बुक जरूर पढ़ लेना उसके लिए. कोई और क्वेश्चन है अगर आपके पास तो आप पूछ सकते हो, बिकॉज मोस्टली मैंने आपके सारे क्वेश्चन एड्रेस कर दिए एंड आई विल बी एंडिंग द सेशन. पॉलिटी के लिए जो है ओके, मैं जो मेन जैसे मैंने यूपी प्रीलिम्स के लिए बताया कि जो उनकी एनालिसिस है वो पढ़ा करती थी, टेस्ट की एनालिसिस, वैसे ही मेन के लिए जब आप टेस्ट लिख कर आते हो तो उनके मॉडल आंसर्स भी देखा करो. तो मॉडल आंसर्स में भी काफी कुछ होता है जो आपको पता चल जाएगा. सो बेसिकली अगर आपने पॉलिटी अच्छे से किया है प्रीलिम्स के लिए, तो उसके बाद आपको सिर्फ मेन में उनके मॉडल आंसर्स जो टेस्ट वगैरह हैं और मेन 365 अगर कर लो तो उतना इनफ होता है. क्वेश्चंस मैच करना, यू विल बी एबल टू टेल मच बेटर नाउ कि अब क्या मैच कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. बेसिकली मैच करने पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती थी. ऑलवेज फोकस ऑन योर ओन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, योर ओन वे ऑफ राइटिंग, योर ओन वे ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस. दैट विल टेक यू टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस. मॉडल आंसर जैसे आप टेस्ट सीरीज तो करोगे ना, टेस्ट सीरीज जैसे मैंने विजन आईएएस का इनरोल कर रखा था, या मैंने L2A का इनरोल कर रखा था एंथ्रोपोलॉजी में, या पवन सर का इनरोल कर रखा था, वो मॉडल आंसर्स देते थे. मैं वो मॉडल आंसर्स से अपने आंसर्स मैच किया करती थी, और जो चीजें मैंने मिस की मैं वही लिख दिया करती थी. तो मेरे नोट्स भी बन जाते थे, मेरी एनालिसिस भी हो जाती थी. सीसैट में अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, कैट का मटेरियल रेफर टू दैट. Anything else, guys? I hope this session was helpful to you. I hope I was able to address most of your questions, because it's like 1 hour 10 minutes से मैं session ले रही हूँ. So it's been very good interacting with all of you and sharing my own journey. It was a long journey, and I hope I helped with my knowledge, with my own journey. It will be, see, the UPSC journey is difficult at times, but it's very, very enjoyable. It's very, very fruitful, and it will make you grow as a person. It'll make you very confident, and then when you enter the services you'll be a very good administrator as well. So focus on having a good preparation, focus on understanding everything, and transitioning from a person who only learns for the sake of learning, but to a person who understands as well and who is able to analyze things as well.
IPN TAS is Indian Post and Telecommunication Accounts and Finance Services. Basically, it does the work of spectrum licensing, spectrum auctions, postal services, India Post, all these things. Instagram ID is reachsundaram_IPTAS 2022. Okay. So reserve list is basically a list that UPSC, so जब UPSC अपनी रिजल्ट के साथ आती है, the first list that it comes up with, उसमें आप पहले पेज पे देखना UPSC राइट्स दैट हमने इतनी सीट्स जो है वो बाद के लिए बचा के रखी है, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व लिस्ट. Reserve list is not reservation. Don't get confused. The reserve list is a list of seats that UPSC keeps for later, जो वो बाद में निकालती है. उसके पीछे वजह होती है कुछ सर्विस आइट्रेशंस की, क्योंकि इनिशियल जब पहली सर्विस आइट्रेशंस होती हैं उसमें कुछ शफलिंग होती है, तो उसको मैनेज करने के लिए यूपीएससी एक और लिस्ट अलग से पहले, बेसिकली दिस लिस्ट यूपीएससी हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बट वो निकालती बाद में है, इसीलिए उसको रिजर्व लिस्ट कहता है. So that's what reserve list is. And thank you so much. Thank you so much. You're writing very good things. Okay, for people who are from poor background and financially, अगर आपको books वगैरह की दिक्कत आ रही है, make sure you get an internet connection. Internet connection वाली उतना बस आप afford कर सको अगर सब कुछ online available है. Everything is available online. PDFs online available है. Telegram पे PDFs, books, everything is available. Have an internet connection and develop the habit of reading something on screen. That's it. That's all you need. Thank you so much. Thank you so much that my guidelines helped you. Human geography के लिए NCERT है. NCERT, go through NCERT in geography definitely. Geography में NCERT miss मत करिए. And मृणाल के slides है. Those are also very good. And apart from that, test series. Again, prelims में भी test series, main में भी test series. Regarding all my IDs, Instagram, Telegram, YouTube channel, I'll be posting all this. Okay, I'll posting all this. I'll be posting all this on this chat box only. Do check it out. Thank you so much. Economics में problem हो रही है. Yeah, okay. So economics में, as I said, go through a book that explains things in a simple manner. जो इकोनॉमिक, जैसे शंकर गणेश की बुक मुझे पता है कि वो सिंपल तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ, तो यू कैन रेफर टू दैट. मृणाल के वीडियोज आर वेरी डिटेल्ड एंड वेरी लॉन्ग एंड बल्की, सो इफ यू हैव टाइम गो थ्रू दैट. अगर टाइम नहीं है स्किप इट. बाकी उसके अलावा टेस्ट, न्यूज़पेपर, दैट्स इट. मेंस टेस्ट सीरीज, आप मेंस की जो टेस्ट सीरीज है लिखने को तो आप अभी से भी लिख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट दैट स्टार्ट इट इन नवंबर एंड देन जब आपने एक बार स्टार्ट कर दिया है देन फॉलो द स्केड्यूल. टेलीग्राम चैनल अभी मेरा आई डोंट हैव, I have not started, but I'll be starting a Telegram channel, a YouTube channel, and an official Instagram channel as well. So be connected on my Instagram channel right now, जो कि आपको अभी दिख भी रहा होगा. उसमें अगर आप जाओगे तो you will, I'll let you know everything about it. My Instagram is, I'll send you right now only. So that's my Instagram ID. You can check it out, and whatever my YouTube channel is, again you can search this or this. So this is my YouTube channel and the other one is my Instagram channel. Geography में आप NCERTs पढ़ो पहले. NCERTs पढ़ो and उससे आपको काफ़ी लाइक क्लैरिटी आ जाएगी, काफ़ी ईजी हो जाएगा सब कुछ समझना. एंड देन बहुत डिफिकल्ट हो रहा है तो उसके बाद मृणाल के स्लाइड्स हैं, आप वो देख सकते हो. एंड गो फॉर टेस्ट सीरीज, यूज टेस्ट सीरीज प्रोफ्यूजली. टेस्ट सीरीज में आंसर क्वेश्चंस को आंसर्स करो, उनके एनालिसिस को पढ़ो, तो आपको बहुत आइडिया लग जाएगा. कुछ चीज़ें नहीं समझ आती है तब अगर आपने कोचिंग ले रखा है, गो टू द मेंटर एंड आस्क
your doubts. Don't be afraid of asking any doubt, even if it feels silly. While filling mains form, graduation certificate is because I'm fourth year. Um, I don't have much idea about this. I started writing the exam when I was already eligible. So, yeah, you'll have to ask someone else for this. NCRT 6 to 12 new preferred that because वो updated है नई information के साथ, so go for that. Any other questions if you have? I'll be happy to address it. Preferably go for enroll for the main test series. I'll tell you why. Because जब आप सेंटर पे जाते हो पेपर लिखने के लिए और वहाँ आपके साथ बहुत सारे बच्चे लिख रहे होते हैं, एक आपको एक वो फीलिंग ज़्यादा आती है एग्ज़ाम देने वाली। देन यू सबमिट इट इन टाइम एंड देन दे चेक इट, यू सी द इवैल्यूएशन। सो एक रूटीन सा बन जाता है, एक शेड्यूल बन जाता है, एक डिसिप्लिन बनता है। तो एनरोल फॉर इट। बट इफ देयर इज एनी अदर प्रॉब्लम, देयर इज फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या अगर आप दिल्ली में नहीं रहे हो या आपके यहाँ पे कोई टेस्ट सीरीज है नहीं या इस तरीके की दिक्कत है, then you can just like buy from the market as well, write it. But for that you will need a lot of self discipline. Maintain your discipline, write the answers at your own disposal, and you can do something like you can make some of your friend or your family member as an invigilator. Tell them to keep a check on you कि आप 3 घंटे ही लिख रहे हो, 3 घंटे से ज्यादा नहीं लिख रहे हो या कम भी नहीं लिख रहे हो। ये सब चेक मेंटेन करना पड़ेगा। go through इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में समरी वीडियोस भी आते हैं, यू कैन गो थ्रू दैट एज वेल, वो भी कवर कर लेता है। इकोनॉमिक सर्वे तो बहुत बल्कि होता है, सिर्फ वीडियो करने से भी हो जाता है काम। तो दैट इज वन थिंग दैट यू शुड रीड फॉर इकोनॉमिक्स। एंड राज्यसभा टीवी के कुछ पहले राज्यसभा टीवी था, अब आई थिंक द नेम हैज चेंज्ड। उस पे जो डिस्कशन होते हैं, जो डिबेट्स होते हैं, यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। Any other question? Guys, if you have any other question. मैं इनिशियली तो रात को पढ़ाई करती थी, बाद में मुझे समझ आ गया था कि दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि फिर मुझे एग्जाम टाइम में भी नींद आती थी, अब एफिशिएंसी नहीं रहती थी। बाद में मैंने सुबह पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। आई यूज्ड टू वेक अप रियली अर्ली, 6 से 7 बजे के बीच में मैं उठ जाती थी, एंड दिन भर या दिन मैक्सिमम 11-12 बजे तक पढ़ती थी मैं। डिबेट अर्लियर द बिग पिक्चर नाम से एक डिबेट आता था, वो मैं देखती थी, यूट्यूब पे देखती थी। टाइम तो क्या ही है, वो यूट्यूब पे आ जाता था, मैं वही देखा करती थी। Anything else, guys? Or I should I'll end the session if there is nothing else. If at the end, something that I would like to say and I'd like to end the session with is, do also write state examination. That is something that really helped me. यूपीएससी के साथ साथ स्टेट एग्जामिनेशंस, अगर आपको ज्यादा टाइम हो गया, आपने 3-4 अटेम्प्ट दे दिए और अभी तक कुछ हो नहीं रहा है, तो आप स्टेट एग्जामिनेशंस भी लिखो। दैट विल हेल्प यू अ लॉट. If you get selected, you'll get a lot of confidence boost and you'll have a backup. Those are also good, and that will give you a lot of exposure to administration as well. So that is something that I'll suggest. What I meant, so some people are asking to repeat that thing. So what I meant was, अगर आपके ज़्यादा अटेम्प्ट्स हो गए और आपका यूपीएससी नहीं निकल पा रहा है, किसी स्टेज पे रुक जा रहा है, so consider attempting state examinations as well. And UPPCS is something which is very much similar to UPSC, so you can definitely take up that exam and test your writing skills through that exam. So that will help you a lot. If you get selected, you'll get a lot of confidence boost from it. कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गए तो कोई बात नहीं। काफ़ी सारे लोग तो चौथे, 5वें अटेम्प्ट में भी फेल होते हैं। काफ़ी सारे लोग 6 अटेम्प्ट देने के बाद भी फेल होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। जस्ट लाइक कोई जस्ट राइज़ अप एंड एनालाइज़ योर फेलियर, एनालाइज़ व्हाट मिस्टेक्स यू मेड एंड स्टार्ट रीडिंग फॉर सेकंड अटेम्प्ट एज़ सून एज़ पॉसिबल। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में, अच्छा मैं ये आई विल नॉट से दैट
मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा पिक्चर नहीं शो करूँगी कि हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए एंड हमेशा डिसिप्लिन रहना चाहिए। दिक्कतें आएँगी बीच-बीच में, ऐसा होगा व्हेन like sometimes some days you'll not be able to maintain your discipline, but the more important thing is next day आप फिर से you rise up and you start doing the same thing again and again. Consistency के लिए जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा वो है schedule एंड दूसरा स्टडी पार्टनर और स्टडी ग्रुप। ग्रुप बट पार्टनर एंड ग्रुप only and only if they are disciplined enough. Yeah, so mostly I have addressed all the questions CSAT and everything I have addressed initially. ये video आगे भी YouTube पे रहेगी. So whatever questions related to that, if you have, please check out this video again. I'll be ending the video now. All the best for all you aspirants. I'm sure you'll do very good. I'm sure you'll be able to study everything and apply it in your examinations. Maintain your self discipline, maintain your peace of mind, maintain your consistency. If you do that, and even if you fail in one or two attempts, make sure that you are there in the longer run. आप longer run में इसमें endure कर पा रहे हो. So then you will definitely one or the other time you will get selected. And in the end, even if you did not get selected, maintain your confidence in life, your happiness in life. Have a backup in your mind. These are some tips that will definitely give to all you aspirants. Okay, all the best, guys. All the best. Do check this out, this video later if you have any other doubts. Bye bye.